students, welcome back to one more video. And in today's class we are going to study some reactions of aldehydes and ketones. We studied few more reactions in our previous classes, and in today's class specifically we are going to study reaction of aldehydes and ketones with base. Now let's see that how do they react. Okay, so if I am having aldehyde or ketone with me, if I am having aldehydes and ketones with me, these aldehydes and ketones react with bases. I will say that react with bases. Aldehydes and ketones reacts with bases such as NaOH or Na2CO3, or we'll say that BaOH whole twice. So aldehydes and ketones reacts with bases to convert itself first of all into aldol, and second one, on removal of water molecule, that is dehydration, on heating it will convert it into unsaturated compound. Now let's understand this compounds. Okay, now what is this reaction? Let's understand. First of all, we are taking aldehydes or ketones. These aldehydes or ketones reacts with bases. Bases, for example, I told. Then they are forming one aldol. Aldol, it means which will contain aldehyde group as well as alcoholic group, hydroxyl group and CHO group, that is known as aldol. And then when this aldol, again on dehydration, on heating, it can convert it into unsaturated compound. Okay student, and that's why this reaction with bases is also known as aldol condensation. It is also known as aldol condensation. So let's start studying aldol condensation now. Now for aldol condensation, as we need to take two aldehydes or ketones, so I'll write here as two molecules. Here I'll write it as a two molecules. Now let's take two molecules of either aldehyde or a ketones and let's see that how they are reacting. Okay, so first I am taking it as a CH3CHO, that is acetaldehyde. ठीक है, अब हम देखते हैं इसको प्रॉपरली कि aldol कंडेंसेशन होता क्या है. सो aldol कंडेंसेशन में हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल लिया. किसका लिया है ये? एसिटाल्डिहाइड का. एसिटाल्डिहाइड का हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया है. एसिटाल्डिहाइड, at the same time I can take another molecule of acetaldehyde. I'll write in this way so it would be better for us to understand. Here also I'll be writing the same way. Okay, now let's see that how the reaction will go in the presence of base. In the presence of base, or you can write it as a OH negative. Now what happens here? Here this one molecule from this CH3. So one molecule, rather than saying molecule, I'll say that one hydrogen from this CH, in this way I'll show. It will go to this oxygen atom and we can get it as a CH3COH, then below again H, CH2, C double bond O and H. Okay student, now let's try to understand. तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई हमारे पास में दो मॉलिक्यूल है. ठीक है, एसिटाल्डिहाइड के हमने सेम अल्डिहाइड लिया, तो हमने टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड लिया. देखो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ये दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर है. अब हमने क्या किया कि जो दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा उसका एक H जो है बेस के प्रेजेंस में इस OH से अटैच हो जाता है. सो OH से अटैच होने की वजह से ये क्या होता है, ये बन जाता है अल्डोल. अल्डोल इट मीन्स, अल्डोल मीन्स क्या होता है, देखो इसका हम नेम भी लिख सकते हैं, आराम से हम लिख सकते हैं. ये कौन सा है, ये देखो ये कार्बन हो गया, तो हम ये इसको कह सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड. ये क्या हुआ, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड. बीटा क्यों, क्योंकि कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है इसे कहा जाता है अल्फा. और ये मैंने जब आपको नॉमेनक्लेचर समझाया था तब बताया था कि भाई अल्फा बीटा का हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं. तो मेन कॉन्सेप्ट अगर हम देखें यहाँ से, मैं एक डिफरेंट कलर पेन से लिख लेती हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आए इस चीज को कि क्या है ये मेन कॉन्सेप्ट. तो अल्डोल कंडेंसेशन में हम किसको देखते हैं, हम अल्फा हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करते हैं. किसके बारे में,
अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। तो ये हुआ अल्फा हाइड्रोजन, ये हुआ अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन मीन्स कौन सा? ऐसा कार्बन, ऐसा हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अटैच्ड हो उस कार्बन से जहां पर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसे कहा गया है अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास जाता है? ऑक्सीजन के पास जाता है और हमें मिलता है अल्डोल। इट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन जाकर ये कौन सा कंपाउंड बनाता है? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनाता है। बट ये बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर अल्डोल जो होता है ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो इसीलिए ये किसमें कन्वर्ट होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। तो जब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो देखो किस तरीके से डिहाइड्रेशन होगा। हमने क्या कहा? सबसे पहले तो हीट लेंगे -H2O, क्योंकि हीटिंग भी करना है और डिहाइड्रेशन। अब देखो H2O कहां से जाता है, ध्यान से समझो। यहां पर CH2 है, तो इस CH2 को मैं एक H यहां लिख लेती हूं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। और ये फिर इसमें से ये जो H2O जो है इसको हमें रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद में जो हमें यहां प्रोडक्ट मिलेगा वो है CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH। इट मीन्स यहां पर जो हमें बॉन्ड मिल रहा है, यहां पर जो हमें कंपाउंड मिल रहा है वो क्या करता है? अनसैचुरेटेड है, और इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड भी कह सकते हैं। और हमें ये अच्छे से याद रखना है कि जिसमें हाइड्रोक्सी अल्डोल से ज्यादा स्टेबल ये अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड है। वाई? ड्यू टू कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये कॉन्जुगेशन इफेक्ट से ज्यादा ये स्टेबल होता है। तो चलो अभी हमने ये समझ लिया, इसका नेम तो आप आराम से लिख सकते हैं 1 2 3 4। ओके, सो इसका नेम क्या हो गया है? इसका नेम हुआ है ब्यूट 2 in 1 अल। यस, सो ब्यूट 2 in 1 अल जो है इसका नेम हो सकता है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो अल्डोल कंडेंसेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया है। तो अल्डोल कंडेंसेशन को ध्यान से समझो। हमने क्या क्या लिया है? सबसे पहले तो हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड लिए और वो यहाँ पर सेम अल्डिहाइड लिया है, ये भी हमें याद रखना है। और अल्डोल कंडेंसेशन कौन से अल्डिहाइड जाते हैं? जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में ये कंपाउंड है CHO, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? HC डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड के पास में ये इसका नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। और इसीलिए फॉर्मल्डिहाइड जो है अल्डोल कंडेंसेशन के पीछे नहीं जाएगा, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं कर सकेगा। सो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूं? तो सो आई होप यू अंडरस्टूड कंप्लीट अल्डोल कंडेंसेशन। Okay, and if we are studying aldehyde or if you are studying ketones, so we should know about aldol condensation. And this not only aldehyde, ketones can also. Now let's take few more examples. So let's write down here few important points of aldol condensation. So in aldol condensation, what all points are important? First, the necessary I'll write it as a key points of aldol condensation. So first one is alpha hydrogen. Alpha hydrogen should be there. Second one is in the presence of base. In the presence of base. And third situation would be, third we will say it as a in the presence of base we studied. And then third situation is two molecules of aldehyde or ketones. Then fourth one is we need to do dehydration in the presence of H plus ion on heating. These all are the key points to understand
अल्डोल कंडेंसेशन। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये अच्छे समझ में आ रहा है। आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखिए। पहले तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ बेस होना चाहिए, थर्ड वन इज टू मॉलिक्यूल, और सेम ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। देन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन्स ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन और हीटिंग भी। हमने शायद प्रीवियस एग्जाम्पल में वो नहीं लिखा है, बट आप सभी को लिखना है। तो चलो कुछ और रिएक्शंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पर जो है अभी हमने क्या लिया है, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, एसीटोन। एसीटोन का अगर हम सेम मॉलिक्यूल लेंगे, सो यहां पर मैं लिख लेती हूं CH3 डबल बॉन्ड O CH3, सेम वन मोर एसीटोन हमने लिया है। अब जब हमने इसको भी सेम लिया है तो देखो ये रिएक्शन कैसे होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और आई विल राइट इट एज अ OH नेगेटिव। सो ध्यान से समझो इस चीज को। पहले तो यहाँ पर H3 था, तो हम इसको H3 को H2 करके यहाँ पर एक H कर लेते ताकि वो यहाँ पर आकर अटैच हो सके। और जब ये इस तरीके से अटैच होगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा CH3COH। और अब ये CH3 जो मैंने यहाँ साइड में लिखा है उसको मैं नीचे लिख लेती हूँ CH3। अब ये कौन अटैच्ड होगा इसके साथ, CH2C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये बन गया है हमारा अल्डोल। इन केस ऑफ कीटोन भी हम इसको क्या कहते हैं, अल्डोल ही कहते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड है। अब हमने क्या देखा, इसके बाद में इसका क्या होता है, नेक्स्ट क्या है, टू मॉलिक्यूल्स से डिहाइड्रेशन। सो -H2O ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। तो जब H+ आयंस का प्रेजेंस है, मतलब क्या होगा, यहां पर देखो ध्यान से, ये जो है यहां से, ये जो है यहां पर हमने CH2 लिखा है, एक H यहां आएगा, और इसके बाद में इन दोनों का जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को हमें रिमूव करना है। और जब आप वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करोगे देन वी कैन गेट CH3C, यहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, then C double bond O CH3, and then it becomes CH3. So in this way we can get that unsaturated compound. So in aldol condensation, what all things we need to keep in mind, that I have wrote, and I hope I gave you 2 examples and you clearly understood those. Okay, now your student, you can take few more example. For example, if you will take benzaldehyde, and let's see that, take 2 minutes time and do the reaction with benzaldehyde and see how can you carry out this aldol condensation. So students, we studied that aldol condensation, और aldol condensation के कुछ हमने मेन पॉइंट्स जो है वो भी अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अब जैसे कि हमने एक पॉइंट देखा था कि 2 सेम अल्डिहाइड और 2 सेम कीटोन्स। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इफ वी हैव 2 different aldehydes or 2 different ketones, then what to do with them? Okay, now let's see that reaction. Now consider that if I am having one is CH3 CH2OH, so it means CH3 CH2 CHO. So what is the name of this compound? This compound name is propanol. Okay, and another one I am having, and that one is I am taking it as a ethanol, CH3C double bond OH. ये यहाँ पर क्या लिया गया है, इथेनॉल लिया गया है। अब ध्यान से समझो, ये दोनों अल्डिहाइड है, बट ये दोनों अल्डिहाइड डिफरेंट है। हमने अल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या देखते हैं कि दोनों अल्डिहाइड क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं, बट यहाँ पर जो हम अल्डिहाइड ले रहे हैं वो कैसे है, वो अल्डिहाइड डिफरेंट है। और इसीलिए हम ये कहेंगे कि ऐसे अल्डोल कंडेंसेशन को हम कहते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्या कहते हैं हम इसको, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन आपको समझ में आया। सो अल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, हम अल्डोल कंडेंसेशन में जो है हम लेते हैं 2 सेम मॉलिक्यूल। मैं यहां लिख लेती हूं ताकि हमें याद रहे, 2 सेम मॉलिक्यूल्स लेते हैं। और यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स।
Okay, so let's see that when we have propanol and ethanol, two different molecules of aldehyde, तो ये किस तरीके से aldol, प्रोसीजर तो वही है, सिर्फ हमें इसके देखना है कि कितने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और हमें याद रखना है कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में यहाँ पर सिर्फ हमें एक या दो प्रोडक्ट नहीं मिलते, हमें कितने प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। अब 4 प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं वो भी मैं आपको समझाती हूँ। देखो 4 प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं, हमने क्या कहा भाई, इनके हमें कितने मिल रहे हैं प्रोडक्ट, 4 products we can get in cross aldol condensation, or I'll write this in such a manner that so we should get, so see process of ours is same, प्रोसेस तो हमारी सेम रहेगी। प्रोसेस कैसे सेम है हमारी, देखो सबसे पहले तो ये दोनों में से क्या होगा हमारा, जैसे हमारा हम क्या क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, तो इसमें से जब आप ये अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो इसको आप ऐसे मिटा के हम इसको क्या कर सकते हैं, CH2 और यहाँ H हो गया, ये जाके इससे अटैच होगा, और जब ये इससे जाके अटैच्ड होगा तो हमारे पास कैसे होगा, CH3 CH2C OH और यहां पर H आ जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डोल बना है। अब जब ये अल्डोल बन चुका है और यहां पर क्या होना चाहिए, बेस, फिर ये क्या करता है, ऑन हीटिंग रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। सो हम देख सकते हैं कि इसमें से क्या होगा, रिमूव, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, वो भी इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। और जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो यहां पर हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, हमें प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो प्रोडक्ट है हमारे पास में सी, यहां मैं नीचे लिख लेती हूं, CH3 CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये हमें प्रोडक्ट मिल रहा है जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं प्रोपैनल और इथेनॉल की। सो ये हो गया है आपका फर्स्ट प्रोडक्ट। Which one? First product. And what we said that when cross aldol condensation is there, in cross aldol condensation 4 products, 4 प्रोडक्ट। अब देखो 4 प्रोडक्ट किस तरीके से मिल सकते, एक तो मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है, अब मैं दूसरा बताती हूँ। अब क्या हुआ यहां पर, जब एक, अभी देखो अगर जब भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपैनल जब कंबाइन होंगे तब ये देंगे आपको एक प्रोडक्ट, राइट। देन वी विल राइट इट एज अ 2 molecules ऑफ इथेनॉल, जब वो 2 molecules ऑफ इथेनॉल कंबाइन होंगे तब भी वो देंगे एक प्रोडक्ट। एंड यहां पर हमने प्रोपैनल प्लस इथेनॉल लिया था, अब हम लेंगे यहां पर इथेनॉल एंड प्रोपैनल। अब हम कौन सा ले रहे हैं, इथेनॉल एंड प्रोपैनल, एंड देन ऑल्सो वी आर गेटिंग 1 more product. So in this way product 1, product 2, product 3 and product 4। और इसी तरीके से हम जो है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में 4 प्रोडक्ट्स का स्टडी आराम से कर सकते हैं। ओके, सो इसमें हमने ध्यान से क्या देखा है, देखो कि जब प्रोपैनल और इथेनॉल करके हमने वो प्रोडक्ट निकाला, अब आपको खुद से जो है ये रिएक्शंस करके देखनी है और आपको देखना है कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं या और भी कोई प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। तो आप ये रिएक्शंस करके देखिए, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में आप सिंपल सा क्वेश्चन पुट कीजिए, इजीली आई विल बी टेलिंग यू द आंसर ऑफ दिस। एंड देन व्हेन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड व्हेन यू विल सॉल्व 2 मॉलिक्यूल्स, तो यहां पर देखो हमने 4 प्रोडक्ट इस तरीके से मिले। पहला प्रोडक्ट तो हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिला, सेकेंड प्रोडक्ट हमें इनके कॉम्बिनेशन से मिला, देन थर्ड प्रोडक्ट हमें इनके 2 कॉम्बिनेशन से मिला है, और फोर्थ प्रोडक्ट जो है हमें ये 2 कॉम्बिनेशन से मिला है। सो टेक 2 minutes टाइम एंड बी फास्ट एंड डू द रिएक्शन। आई होप आपको फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो समझ में आ गया है। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी गेट अदर प्रोडक्ट्स एंड देन इजीली वी कैन राइट दोज। सो फर्स्ट प्रोडक्ट हमें क्या मिला था वो अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वैसे क्या मिला था हमें फर्स्ट प्रोडक्ट, हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये जो है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट हमें मिला था। अब देखते हैं हम हमारा सेकेंड प्रोडक्ट में हमने क्या लिया, 2 molecules of propanol. So let's take 2 molecules of propanol, CH3 CH2 C double bond OH
प्लस यहाँ पर मैं और ले लेती हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख रही हूँ, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो मैंने इस तरीके से इसको क्यों लिखा हुआ है, क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, हमें क्या चाहिए इस रिएक्शन में, अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन हमें यहीं से मिल सकता है। तो ये हुआ H, ये जाके इससे अटैच होगा, यहाँ पर क्या रहेगा, बेस। तो हम प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2COH, देन यहाँ पर आ जाएगा H CH CH3 C double bond O and H. Okay, so we can get this as a product and we know the next step of it. In the next step, on heating and by removal of water molecule, तो water molecule तो इसी से होगा क्योंकि हमारा क्या, हमारा बीटा हाइड्रोक्सी हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए। सो इसीलिए जो है हम यहाँ से ये एक जो ये इसके साथ में आ जाएगा और ये कंबाइन होकर बाहर निकलेंगे एंड वी कैन गेट प्रोडक्ट एज CH3 CH2CH double bond C CH3 C double bond O and H. So we got second product as, let's write the second product, CH3 CH2 CH double bond C, then CH3 CHO. So students see, in this way we got second product also by the combination of two molecules of propanol. I hope you all are understanding and you all did the question in the same manner. Now let's understand the third product. How can we get third product? By combination of these two. And what are these two? It means two molecules of ethanol. इथेनॉल का वैसे हमने करके देख चुके हैं, इसके पहले वाले रिएक्शन में ही हम देख चुके। अब हम थोड़ा सा फास्ट वे में करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। सो देखो यहाँ पर हमारे पास इथेनॉल है इस तरीके से, ठीक है। आप सभी, आई होप आप सभी इस चीज को अच्छे से कर पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ से एक टू, यहाँ पर एक हमने H ले लिया, ये इसके पास चला जाएगा, यहाँ मैंने OH लिख लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। जब तक आप खुद से लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये समझ में नहीं आएगा। सो यहाँ पर फिर हमारा बना है CH3COH, देन यहाँ पर H आ जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया हमारा अल्डोल। अल्डोल में से इसको हीट करो और साथ में वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करो। जब आप वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दोगे, कहाँ से, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दोगे, सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। ये अब भी हमने अल्डोल कंडेंसेशन में स्टडी किया हुआ है, तो हम यहाँ पर अपना सेकेंड प्रोडक्ट जो है वो भी इजीली लिख सकते हैं। और आप ध्यान से देखो, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेम नहीं है। नाउ लेट्स सी द लास्ट प्रोडक्ट एंड दैट वन इज फोर्थ प्रोडक्ट। आई होप आफ्टर सॉल्विंग दिस मेनी टाइम्स यू ऑल अंडरस्टूड एज वेल एज ये सभी को बाय हार्ट हो चुका है। ओके, सो ये थोड़ा सा इरेज हो गया शायद। चलो, अब हमने क्या कहा, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, तो इसी तरीके से लिखते हैं। पहले इथेनॉल लिख लेते हैं हम। इथेनॉल क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH एंड देन प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल हमें कैसे लिखना है, OH, और यहाँ पर मैं इसको CH2 और यहाँ CH3 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये क्या है, अल्फा। सो हमें पता है यहाँ से एक H इसके पास जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। सो स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या, आप लोग कर रहे हैं, देखो। सो यहाँ पर आ जाएगा OH, देन हियर इट इज H, देन वी कैन गेट इट एज अ CH, CH3C double bond O and H. And student, as we know that, now what is the next procedure? Next procedure is to remove water molecule. So remove water molecule in the presence of H plus and do heating also. So finally we can get it as a CH3CH, or I'll write in this way, CH3CH double bond C CH3CHO, and see, you can easily observe that we got 4 different product in aldol condensation.
सो जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, तो क्या होता है, आपको या तो करेक्टली ये चारों प्रोडक्ट आपको लिखते आना चाहिए, और अगर आपको इनकेस डायरेक्टली नहीं लिखते आ रहा है तो आप ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे स्टेप वाइज करके भी फाइनली चारों प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं जब भी हम कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं अल्डोल कंडेंसेशन के लिए. सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक, दैट इज अल्डोल एंड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन. So I hope if you understood, please do share my video with your all friends, and those who are new to my channel, please subscribe, like and share. Thank you students, and have a good day.